Hello all, welcome to Carbon Chemistry Era. So in this video we are going to learn, we are going to start biomolecules, and the first part we are going to learn is amino acids. So what is the basic structure of amino acids? Amino acids are nothing but the compound that contains amine as well as acid. So this is general structure NH2CH So any compound having NH2COH and in between them if there is one carbon bond, so that is nothing but amino acids. So you have to remember this general structure NH2CH and there will be R because we need to complete the valency of carbon. So NH2CH and COH. R can vary. So I have just written R is as a variable. So R can be a different for a different amino acids. It can be H, it can be methyl, or kind of that. So so if a compound contains an amine group and acid group, so what we call this that compound amphoteric or deuterana, right? So due to that property, amino acids are nothing but amphoteric in nature. So we are going to learn why this is amphoteric and that amphoteric in nature defines deuteran. So there are more than 21 amino acids till now. So we are going to learn around 20 amino acids in this tutorial. So here I have written NH2CH R can vary, right? So whenever in acidic conditions, what will happen? This H plus goes to this NH2 because this is a base. This nitrogen contains lone pair, so it will attract the hydrogen of this acidic part to that nitrogen atom. So we'll get this NH3CHR CO minus. So what is this? If the same compound contains one positive charge as well as one negative charge, so what will happen? We will form deuteran. Why deuteran is formed? Because it is a more stable, right? So due to that, if there is amino acids, so amino acids exist in a deuter form, right? Now these deuter form act as a acids as well as base. So in acidic condition, so here H plus acidic medium and second case OH minus basic medium. So what will happen in acidic medium? So this H plus will provide as acidic medium. So what will happen? This CO minus will attract the H plus and will form a new bond. So we'll get NH3 plus CHR COH. This this is nothing but a monocation. We have got monocation in here. So where it will migrate? It will migrate to cathode, right? So migrate towards cathode because this we have charges in this compound, so it will migrate towards cathode and anode. So we need to remember like whenever in acidic medium, so it will migrate to cathode. Why? Because the H plus will goes to COO minus of that deuteran, right? Now whenever you providing basic medium, so what will happen? NH3 is already having this one plus, right? So it will OH minus will take the H plus from this NH3 and make it as a NH2. So NH2CHCO. So what will happen? We will get minus water molecule outside. So now this is a monoanion, right? So this is monoanion. Now monoanion will migrate towards anode. So in exams they may ask like in if amino acids deuteranion can shift towards cathode or anode in which condition. So in acidic condition it will shift towards cathode, but in basic medium it will shift towards anode because it content monoanion, right? Negative charge, one negative charge and this one positive charge. अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. There are 21 there are more than 20 amino acids, so they are going to classified into three parts. One is a basic amino acid, another is a acidic amino acid, and third one is a neutral amino acid. So we have some formula to remember how to remember the structure of these amino acids. So there are three basic amino acids and two acidic amino acid, and rest is 15 amino acids. So there are more than 20 amino acids, but the most important amino acids are nothing but the 20 we are going to learn. So we'll start with basic amino acids. So as we have mentioned earlier, like we have three basic amino acids. So before explaining their names, I'll give one shortcut how to remember. भागो, तीन, गुंडे और
4 आदमी लाई हिस्ट्री. ओके, सो फ्रॉम भागो वी आर गेटिंग दिस बी अल्फाबेट. तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक अमाइनो एसिड्स. 3 इज नथिंग बट 3 कार्बन. गुंडे मतलब ग्वानाडीन स्ट्रक्चर. तो अपने को मिलेगा पहला. what will be the name? Arginine, right? ARGENINE. So at this भागो 3 गुंडे और will give us first basic amino acid. After that 4 means 4 carbon. Admi means amine. We are getting that pronunciation, right? So 4 carbon amine structure means nothing but NH2. What will give? Will get second basic amino acid. So what will be the name? Lysine. LYSINE. So we have to and last is nothing but history means histidine. So this is the shortcut. We can remember basic amino acids. So क्या याद रखना है? भागो 3 गुंडे और 4 आदमी लाई हिस्ट्री. सो भागो से पता चल जाएगा दिस इज बेसिक अमाइनो एसिड्स. 3 गुंडे 3 कार्बन, 3 से 3 कार्बन, गुंडे से ग्वानाडीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. और से अपने को मिल गया पहला स्ट्रक्चर अर्जेनिन. अगेन कॉमा 4 आदमी, 4 कार्बन. आदमी मीन्स वी आर गेटिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ अमाइन. सो 4 कार्बन अमाइन ग्रुप. सो व्हाट विल गेट? लाइसिन. And last one is nothing but after 4 आदमी लाई history is nothing but histidine. So this is nothing but R. We are going to learn what will be the R in that general structure. So it can be 3 carbon guanidine structure or 4 carbon amine structure or anything. Okay, so फॉर दिस वी हैव इतना याद रखो कि सबसे पहले अपने को जनरल स्ट्रक्चर याद रखना है. NH2CH और ये R होगा. हम पढ़ेंगे R क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. डिपेंड ऑन एसिडिक है और बेसिक है और न्यूट्रल है. अब वो हमको याद रखना है. कैसे याद रखना है? तो अपन ने पढ़ा बेसिक में कैसे 3 होते हैं. बेसिक के 3 होते हैं. सबसे पहले अपने को याद रखना है कितने होते हैं. बेसिक के 3 होते हैं. अब उनको कैसे याद रखना है? बेसिक भागो 3 गुंडे और मीन्स अर्जेनिन 4 कार्बन, 4 आदमी लाई हिस्ट्री. 3 गुंडे 3 कार्बन ग्वानाडीन स्ट्रक्चर तो अर्जेनिन, 4 आदमी 4 कार्बन अमाइन स्ट्रक्चर तो लाइसिन और लास्ट वन इज नथिंग बट हिस्ट्री मीन्स हिस्टिडीन. Now we are will go in detail for each one. So basic, we are learning basics. First one is भागो 3 गुंडे और भागो से पता चला ये बेसिक होगा. पहला अपन पढ़ रहे 3 गुंडे 3 कार्बन, गुंडे जैसा स्ट्रक्चर मतलब ग्वानाडीन स्ट्रक्चर. तो क्या मिल देगा अपने को? अर्जेनिन. सो बट इसके पहले अपने को क्या याद रखना है? जनरल स्ट्रक्चर NH2CH ये इतना हर ग्रुप में होगा, हर एक अमाइनो एसिड में होगा. डिफरेंट क्या होगा? R विल बी वेरी. सो ये डिफरेंट होगा. जस्ट रिमेंबर दिस एज अ वेरिएबल. सो अपन R ढूंढने वाले हैं. तो अपन सबसे पहला पढ़ रहे हैं बेसिक में क्या? अर्जेनिन. ARGININE, राइट. सो इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखते? ARG. थ्री अल्फाबेट. सो पहले अपन क्या बनाएंगे? ये जनरल स्ट्रक्चर NH2CH COH. अब अपने को R देखना है. R में मैंने क्या बोला? 3 कार्बन.
3 कार्बन मतलब CH2 पहला, CH2 दूसरा, तीसरा CH2। उसके बाद ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर, ग्वेनाडीन का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मैं इधर। क्या होता है, NH C डबल बॉन्ड NH2 प्लस और NH2। तो अब इसके आगे क्या आ जाएगा, यही बॉन्ड, तो NH2 C डबल बॉन्ड NH2 और NH2। सो 3 कार्बन और ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर। तो क्या मिल गया अपने को, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें अब R क्या होगा, एग्जाम में पूछते R क्या होगा। तो R क्या होगा, R ये अमाइनो एसिड्स में तो क्या होगा, CH2 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 NH2 C डबल बॉन्ड NH2 NH2। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि R क्या होगा, पहचानने आना चाहिए कि अर्जिनिन में क्या पाया जाता है। तो अर्जिनिन दिमाग में आते ही अगर बेसिक अमाइनो एसिड्स पूछता है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये शॉर्टकट, भागो 3 गुंडे और 3 गुंडे मीन्स 3 कार्बन, ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर R होगा, तो क्या होगा, अर्जिनिन, राइट। तो 3 कार्बन ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर ये समझा। सो अर्जिनिन में फिर से मैं लिख देता हूँ, अर्जिनिन में R क्या होगा, CH2 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 3 कार्बन और ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर NH2 C डबल बॉन्ड NH2 प्लस प्लस क्यू, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से ज़्यादा हो रही है, NH2। ओके, सो पहला हो गया। अब दूसरा, भागो 3 गुंडे और यहाँ तक हो गया 4 आदमी, 4 आदमी मीन्स 4 कार्बन अमाइन, अमाइंस मीन्स NH2, लाई मीन्स लाइसिन, दूसरा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे लाइसिन, और उसके बाद क्या आया था, हिस्ट्री, हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री से क्या दिमाग में आना चाहिए, हिस्टिडीन। ओके, सो अपन सेकेंड पढ़ने वाला है लाइसिन। लाइसिन का अपने को सबसे पहले जनरल बना लेना है। जनरल बनाना मतलब NH2 CH COOH। अब ये R क्या होगा, यही R अपने को ढूंढना है ना। तो R मैंने बोला 4 कार्बन, तो एक CH2 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 NH2, तो ये 4 कार्बन हो गया और ये हो गया अपना अमाइन। ओके, सो बना दो NH2 CH COH और इधर क्या आ जाएगा, CH2 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 NH2। ओके, अब बेसिक अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक। तो NH2 जब बढ़ेंगे तो अब जैसे फर्स्ट वाले में पढ़ा तो NH2 कितने थे, इसमें पूछता है। हाँ, अब देखो इसमें NH2 कितने थे, एक तो ये है, हाँ अर्जिनिन वाले में एक तो ये, बट ग्वेनाडीन स्ट्रक्चर में कितने NH2 आ गए, 3। ओके, तो टोटल कितने N है, 4 अर्जिनिन में। हाँ, तो ऐसे पूछेंगे। लाइसिन में अब कितने होंगे, लाइसिन में अपन पढ़ रहे हैं बेसिक, तो ऑब्वियस है बेसिक मतलब NH2 बढ़ रहा होगा, तो एक है, एक अपन R से आ गया, तो ये अपना क्या है, R। ओके, थर्ड, अब अपन पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टिडीन। अब लाइसिन को 3 अल्फाबेट में कैसे याद रखते हैं, LYS। ओके, फिर अपन थर्ड पढ़ेंगे हिस्टिडीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है डिफरेंट, क्योंकि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मतलब ये डिफरेंट होता है, साइक्लिक। 3 नाम में याद रखना है, तो HIS। ओके, तो सबसे पहले तो अपने को जनरल बना लेना है, NH2 CH COOH, और इधर क्या आ जाएगा, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा। अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, R। अब R क्या हो सकता है, मैं लिख के देता हूँ, CH2 CN CH, मतलब एक 3 कार्बन का बॉन्ड बनाओ और ये फर्स्ट और सेकंड वाले पे NH दे दो। ओके, और एक साइड
NH को डबल बॉन्ड दे दो। अगर NH पे डबल बॉन्ड आया तो NH है, ओके। तो NH के साथ डबल बॉन्ड तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, तो प्लस, और इधर C के साथ H और ये। तो अब ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो यूज होता है किसके अंदर, हिस्टिडीन के अंदर। तो एग्जाम में वही पूछता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर यूज होता है एज अ अमाइन। तो इसको याद रखना है। तो CH2 C डबल बॉन्ड CH, अब दोनों कार्बन पे N दिया और एक साइड में डबल ओ दे दो, डबल बॉन्ड CH, ओके। और एक साइड सिंगल बॉन्ड दो। अब डबल बॉन्ड दिया और दोनों साइड NH है, ओके। अब इधर तो प्लस होगा नहीं, तो प्लस किधर होगा, क्योंकि इधर N की वैलेंसी कितनी हो रही है, 4। तो ये अपना जो है वो है R, ओके। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक में हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर, और अपना इस अर्जिनिन का भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है। सो हिस्टिडीन में अपने को क्या याद रखना है कि साइक्लिक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओवरऑल अपने को एक यही शॉर्टकट याद रखना है, भागो 3 गुंडे, और भागो मीन्स बेसिक, 3 गुंडे मीन्स 3 कार्बन, ग्वानिडीन स्ट्रक्चर, तो क्या मिल जाएगा, अर्जिनिन। अर्जिनिन में 3 कार्बन और ग्वानिडीन स्ट्रक्चर होता है क्या, R। फिर सेकंड कॉमा, 4 आदमी लाई, 4 कार्बन, आदमी मीन्स अमाइन, लाई मीन्स लाइसिन, ओके। लास्ट वन कुछ नहीं बचा, तो हिस्ट्री मीन्स हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन सबसे डिफरेंट है, हिस्ट्री इसका कुछ शॉर्टकट मैंने नहीं बोला, तो इसको कैसे याद रखने का, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो NH2CH COH C, अब ये साइक्लिक, ये तो जनरल हो गया। अब R क्या होगा, मैं तो R पढ़ा रहा हूँ, R कैसे याद रखना है, तो R में क्या होगा, तो CH2CH C डबल बॉन्ड CH, और ये दोनों कार्बन पाई बॉन्ड वाले के NH दो और एक साइड पाई बॉन्ड दे दो, ओके। तो ये एग्जाम में पूछता है। अब इसमें कितने नाइट्रोजन पाए जाते हैं, इसमें 3 पाए जाते हैं, समझा। और इसमें से एक चीज पूछ सकता है, लाइसिन, लाइसिन्स में जो R है वो कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, समझा। तो ये भी पूछ सकते हैं। आगे के अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।